Good morning students. Today we are going to start chapter 10 circle. Let us consider a circle and a line in a same plane. Observe three possibilities can arise. The first possibility is the circle and the line have no common point. The circle and a line, have no common point. It means the line does not intersect the circle at any point. It means the line does not intersect the circle at any point. This line is called non-intersecting line with respect to the circle. Clear? Second possibility is the circle and the line have one common point. The circle and the line have one common point. It means the line intersects the circle exactly at one point. It means the line intersects the circle exactly at one point. This line is called tangent to the circle. Clear? The third case is the circle and the line have two common points. It means the line intersect the circle. It means the line intersect the circle at two distinct points. This line is called
secant of the circle, secant of the circle. Clear? तो वन थिंग, जब सर्कल और लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो उस समय लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल. सर्कल और लाइन का एक कॉमन पॉइंट है तो उस कंडीशन में लाइन होगी टेंजेंट, और सर्कल और लाइन के टू कॉमन पॉइंट है तो उस कंडीशन में लाइन होगी सेकेंड. ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. The common point of the circle and its tangent is called the point of contact. This is line, this is circle, and this is tangent. Clear? This is P. ये हो गया point of contact. Only one tangent can draw at a point on the circle, and a circle have infinitely many tangents. सर्कल के एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट. तो उस पर टेंजेंट कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है. क्लियर? देयर आर एट मोस्ट 2 parallel tangents can be drawn to a circle. एक सर्कल पर सिर्फ 2 पैरेलल, एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स होती है. ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे होंगी. ये डायमीटर है, क्लियर? A tangent is a special case of a secant when the two end points of its corresponding chord coincide. देखिए, ये एक टेंजेंट है, तो सॉरी ये एक सर्कल है, ये इसकी सेकेंट हो गई. ये इसके पॉइंट एंड पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड है ए बी के एंड पॉइंट्स होंगे. जब ये ए बी के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? कोइंसाइड होंगे.
ये कोइंसाइड हो गए ए बी के दोनों पॉइंट्स, तो ये टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगी, सेकेंड में चेंज हो जाएगी। क्लियर? ये टेंजेंट किस में चेंज हो गई, सॉरी सेकेंड किस में चेंज हो जाएगी, टेंजेंट में चेंज हो जाएगी। जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड है कि उसके एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो सेकेंड किस में चेंज हो जाएगी, टेंजेंट में चेंज हो जाएगी। क्लियर? नाउ थ्योरम prove that the tangent, the radius through the point of contact is perpendicular to the tangent. This is a circle, this is a tangent xy and the point of contact P. This is center. OP is the radius through the point of contact. OP is the radius through the point of contact. We have to prove this radius is the perpendicular to the tangent. You have to prove this. Clear? There is a theorem, prove that the radius through the point of contact is perpendicular to the tangent. This is a circle and this is the tangent at the point P on the circle. OP is the radius through the point of contact. We have to prove that OP is perpendicular to the XY. Okay? Given में a circle with center O and a tangent XY at a point P of the circle. We have to prove OP perpendicular to the XY. Take a point Q other than P. P के अलावा एक पॉइंट Q लिया इस XY पर और इसको इससे ज्वाइन कराया। Clear? Here Q is a point on the tangent XY other than point of contact P. So Q lies outside the circle. तो ये Q कहाँ लाई करेगा? इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट हम लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा तो वो लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल। ठीक है? अगर Q इनसाइड द सर्कल होता तो ये टेंजेंट ना होकर क्या होती, सेकेंट होती। ये लाइन जो XY है जो टेंजेंट कह रहे हैं हम, ये टेंजेंट ना होकर क्या होती, सेकेंट होती। ठीक है? लेट OQ, ये जो OQ ये पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है? R पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब OP और OR इक्वल होगा। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल OP और OR इक्वल होगा। लेकिन OR क्या है, OQ ग्रेटर देन OR। OQ है वो OR से ग्रेटर देन है, क्योंकि OQ में जब QR प्लस करेंगे OR में जब QR प्लस करेंगे तब OQ आएगा। ठीक है? OQ क्या होगा, OR में QR जब प्लस करेंगे तब OQ आएगा। इसका मतलब OQ या OR से ग्रेटर देन है। जब OQ OR से ग्रेटर देन है तो OP से भी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि OP और OR इक्वली तो है। ठीक है? इसका मतलब OP लेस देन होगा किससे, OQ से। तो thus OP is the shorter than other segment joining O to any point of XY। यानी कि XY पर हम कोई भी पॉइंट लेकर उसको सेंटर से ज्वाइन कराएंगे, O से ज्वाइन कराएंगे, तो वो क्या होगा, OP से उसकी डिस्टेंस कम होगी, यानी कि OP क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस होगा। तो और एज वी नो दैट द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ठीक है? इसका मतलब एक पॉइंट
और एक लाइन के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये हम जानते हैं. सो ओपी इज द परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई. क्लियर. Now let us start exercise 10.1. How many tangents can a circle have? Question number 1. How many tangents can a circle have? A circle has infinitely many tangents. Because there is one and only one tangent can draw at a point on the circle, but a circle have infinitely many points on its circumference. क्लियर. सर्कल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, लेकिन सर्कल क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है, तो उस पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है. अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट. एक सर्कल टेंजेंट एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है. अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड. क्लियर. A circle can have parallel tangents at the most. A circle can have parallel tangents at the most. 2 parallel tangents. तो डायमीटर के एंड्स पे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है. क्लियर. द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल का और टेंजेंट का, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q so that OQ is 12 सेंटीमीटर. Question number 3. A tangent PQ at a point of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 centimeter. Find the length PQ. This is a circle. Tangent PQ at a point of circle. This is the tangent PQ. Of radius 5 centimeter. This is the point of radius through the point of contact is 5 centimeter. At meets a line through the center O. Meets a line through the center O at a point Q. So that OQ is 12 centimeter. OQ is 12 centimeter. Length, we have to find the length PQ. Since in figure OP perpendicular to the PQ, OP है PQ के perpendicular है, क्यों रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो therefore triangle OPQ is a right triangle. Clear. तो by
तो therefore OQ square equals to OP square plus PQ square by Pythagoras theorem. ठीक है, OQ is 12, OP is 5, we have to find PQ. 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर, तो 144 माइनस 25 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर. सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 144 में से 25 लेस करेंगे तो 119. सो PQ इक्वल्स हो जाएगा √119 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली जो रेडियस होगी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी. PQ टेंजेंट है, OQ एक लाइन है जो थ्रू द सेंटर, और ये PQ के कहा मीट कर रही है, Q पर मीट कर रही है. OQ 12 है, OP 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से PQ हमने फाइंड कर लिया. क्लियर? Draw a circle and two parallel lines to a given line such that one is tangent and other is a secant to the circle. देखो, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल की पे टू लाइंस हमें ड्रॉ करनी है जिसमें एक टेंजेंट हो और दूसरी सेकेंट हो विच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन. तो यहां पर ये एक सर्कल है विथ सेंटर O with the center of a circle and PQ a given line and PQ is a given line. Clear? So draw a perpendicular OM from the center O to the line PQ. This is the line PQ which intersect the circle at point C. O से हमें PQ पर परपेंडिकुलर डालना है. अब परपेंडिकुलर डालने का कॉन्सेप्ट क्या है? O पर कंपास रखें, ठीक है, इसको इतना ओपन करें कि वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे. कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर. O पर कंपास रख के इसको ओपन करें और ओपन करके एक आर्क लगाएं जो इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी. सपोज करो दिस इज पॉइंट E एंड F. अब E और F को सेंटर लेकर सेम रेडियस का आर्क लगाना है, सेम साइड ऑफ द लाइन, ठीक है, और इसको ज्वाइन कराना है. तो OM इज द परपेंडिकुलर ऑन PQ. क्लियर? फिर आप ध्यान से सुनिए. O पर कंपास रखना है, इसको इतना ओपन करना है कि जब हम आर्क लगाएंगे तो ये वो आर्क PQ को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. फिर सेम रेडियस लेकर E और F को सेंटर लेकर एक आर्क लगाएंगे और वो आर्क दोनों जहां इंटरसेक्ट करे उसको ज्वाइन कराएंगे. ये आर्क ये लाइन है वो PQ पर को M पर इंटरसेक्ट करेगी. तो OM क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द PQ. ठीक है. अब ये जो OM है ये सर्कल को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. अब C पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे CD. C पर एक परपेंडिकुलर CD डालेंगे बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पे. तो 90 डिग्री पे एंगल बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप जानते ही हो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है. ये 90 डिग्री का एंगल बन गया. ठीक है. और a perpendicular CD has been drawn at a point C of radius OC by making an angle of 90 degree at the point C. Here CD is tangent. This is CD. CD is tangent. Now take a point R on OC inside the circle. OC पर एक point R लिया. इस R पर फिर perpendicular draw करेंगे by making an angle of 90 degree. 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. क्लियर?
तो ये एक्स वाई, नाउ टेकिंग अ पॉइंट R1 OC inside the circle and draw a perpendicular XY on this point, then XY is the secant, okay, to the circle. These all are parallel to each other. देखो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल O से परपेंडिकुलर डाला, किस पर, PQ पर. अब ये परपेंडिकुलर सर्कल को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, C पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, C पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और फिर तो ये टेंजेंट हो गई, और OC पर एक पॉइंट और R ले लिया, R पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है. तो ये लाइन क्या हो गई, जो लाइन परपेंडिकुलर हो गया, ये XY कैसे परपेंडिकुलर डाला है, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है. तो XY CD एंड लाइन PQ, ये तीनों क्या हो गई, पैरेलल टू ईच अदर हो गई. क्लियर.